Thank you, sir. I now request Shri Sunil P. Gupta ji, Honorable Member Governing Board, KIET Group of Institutions, to kindly present Oxy plant to Professor J.P. Pandey ji, Honorable Vice Chancellor, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. We welcome you, sir. I request Dr. Adesh Kumar Pandey, Director Academics, KIET Group of Institutions, to kindly present Oxy plant to Shri Atul Garg ji, Honorable Member of Parliament, Ghaziabad Government of India, and Chairman, Governing Board, KIET Group of Institutions. I now request Dr. Manoj Goyal, Joint Director, to kindly present Oxy plant to Shri Sarish Agarwal ji, Honorable Member, Governing Board, KIET Group of Institutions. Welcome, sir. I request Dr. Ajay Srivastav, Dean Computer Science, to kindly present Oxy plant to Shri Sunil P. Gupta ji, Honorable Member, Governing Board, KIET Group of Institutions. I request Mr. Anup Srivastav, Registrar, KIET Group of Institutions, to kindly present Oxy plant to Shri G.D. Jain ji, Honorable Member, Governing Board, KIET Group of Institutions. I request Dr. Akash Rajak, Dean Computer Application, to kindly present Oxy plant to Shri A.N. Gupta ji, Honorable Member, Governing Board, KIET Group of Institutions. I request Dr. K. Nagarajan, Principal, Kite School of Pharmacy, to kindly present Oxy plant to Shri Neeraj Chaudhary ji, Honorable Member, Governing Board, KIET Group of Institutions. I request Dr. Binky Srivastav, Dean, KIET School of Management, to kindly present Oxy plant to Shri Rakesh Goyal ji, Honorable Member, Governing Board, KIET Group of Institutions. We welcome you all once again. I now request Dr. Adesh Kumar Pandey, Director Academics, KIET Group of Institutions, to invite the Honorable Vice Chancellor, Professor J.P. Pandey ji, to declare the 11th convocation of KIET Group of Institutions open. I request Honorable Vice Chancellor, Professor J.P. Pandey ji, to declare the 11th convocation of KIET Group of Institutions open. I declare the 11th convocation of KIET Group of Institution open. Thank you, sir. Thank you, sir. I request Dr. Adesh Kumar Pandey, Director Academics, KIET Group of Institutions, to present the Institute's annual report. Thank you. Honorable Vice Chancellor ji, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, respected Shri Atul Garg ji, Chairman, Governing Board, respected Shri Sarish Agarwal ji, Chairman, KIET Group of Institutions, esteemed members of Governing Board, Joint Director, Deans, distinguished faculty members, proud parents, and most importantly, our graduated batch of 2024. It is my proud privilege to welcome you all to the convocation ceremony of batch 2024. Today we gather to celebrate a momentous milestone where 1,805 bright students from the diverse disciplines will be awarded their degrees and certificates of achievements, including 22 students who secured top 10 university ranks, winning 4 gold, 5 silver, 3 bronze medals, along with Kamal Rani Varun Award. Sir, let me take a moment to highlight the key developments, recognition, events, and initiatives undertaken last year. The Institute proudly attained autonomous status, empowering us to design and implement a flexible, industry-aligned, and innovation-driven curriculum. Introduced a new program in BTech in Electrical and Computer Engineering, aligning with the emerging interdisciplinary demands. Sir, Institute has got the sanction of AICTE Idea Lab to further support the
research and innovation. We have been selected as mentor-mentee institution for the Institute Innovation Council activities by the AICT. First cycle of NBA accreditation has been secured by Computer Science and Information Technology Department. The MBA program has been successfully re-accredited by NBA for additional 3 years. Our research output with 697 publications and 64 patents granted in last year reflect the Institute's robust research culture. Sir, the Institute hosted a major tech and innovation event, Smart India Hackathon 2024 Hardware Edition, IEEE Hackathon on Sustainable Solutions, and Medical Device Hackathon. Sir, we introduced activity-based and project-based learning through course in IoT, design thinking, innovation and entrepreneurship, Indian knowledge system, and self-growth in first year itself to align with the NEP 2020. Through the activities of NCC and Uddeshya, KIT foster social responsibility among students, encouraging environment and social welfare activities, building a better society. Several faculty members received the prestigious accolades. 2 faculty members have been conferred the Best Faculty Award by AKTU. C.V. Raman Award for the Best Research for 5 recipients, Young Dronacharya Award for 13 recipients, Long Service Award for 27 recipients, Best PhD Supervisor Award for 2 recipients. Sir, I would like to mention few notable students' achievements. The Pradipath Private Limited, founded by KIT students Dibyam Abhishek, is the first service-based company in UP with 8 service centers nationwide. A student startup has been recognized by AKTU as Best Healthcare Innovation Startup Award. Our team, Code Blitz, won the first prize at Smart India Hackathon 2024. We thank our faculty, industry partners, alumni, and most importantly, our students for being the driving force behind the KIT Sustained Excellence. Together we move forward to inspire, innovate, and impact. To our dear graduates, this is not the end of your learning. It is the beginning of your real-world journey. May you carry the values of KIT with the pride and purpose. Lead with the curiosity, serve with the compassion, and act with the courage. On behalf of entire KIT family and management, I congratulate you once again. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. I now take the opportunity to present before all a short film on the Institute's journey. A legacy of excellence, a future of innovation. From humble beginnings to national eminence. From aspiration to achievement. From learning to leadership. KIT Group of Institutions began in 1998 with just 180 students across 3 engineering branches. Today, it has grown into a major center of higher education with more than 8,300 students and a strong alumni network of 20,000 plus professionals worldwide. The Institute offers programs in 4 key domains: engineering, computer applications, management, and pharmacy. More than 390 highly qualified and experienced faculty members teach undergraduate, postgraduate, and doctoral courses, ensuring quality education at every level. KIT is approved by AICTE and affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, maintaining high standards in technical education. In 2024, we mark a proud milestone, the conferment of autonomous status, empowering us to craft education that is innovative, industry relevant, and globally aligned. Our commitment to academic excellence shines in our NIRF 2024 rankings. Engineering ranked band 151 to 200. Pharmacy ranked 77. Innovation soaring to rank band 11 to 50. Demonstrating our relentless commitment to fostering creative thinking. Our academic brilliance is further validated by the NAC A+ grade. Our excellence has also been recognized through numerous prestigious awards and certifications, including
Best Education Brand 2025, NDI Club of Excellence Award 2025, ET Excellence in Green Campus and Sustainability Institution Award, Atal Achievement Award for being the most trusted engineering institute with an excellent placement record in North India, QSIK Diamond Rating, a testament to our holistic institutional performance. At the frontier of innovation and startups, stand our Technology Business Incubator KIET, established in 2007, promoted by NSTEDB, Department of Science and Technology, Government of India. TBI KIT has been recognized with the Best Incubator Award 2020 by the Department of Science and Technology, Government of India. The spirit of excellence extends seamlessly into our specialized centers of excellence, each forging new frontiers in knowledge and industry collaboration. Center of Excellence for E-Mobility and Electric Vehicles in collaboration with L&T EduTech. Center of Automotive Mechatronics in collaboration with Mercedes-Benz India. Center of Excellence in Biomedical Instrumentation Research. Center of Advanced Woodworking in collaboration with BSA India. Center of Excellence in Cybersecurity in collaboration with Wipro Limited. Center of Excellence in Space Technologies in collaboration with ISRO. Center of Excellence in Supercomputing powered by NVIDIA. Two-Wheeler Skills Development Center in association with Hero MotoCorp. At KIT, our robust industry partnerships and outstanding placement record ensures that students are not just job ready but future ready. Our placement record speaks volumes, with top recruiters like Amazon, Microsoft, Google, Accenture, Cisco and Schneider Electric regularly hiring our talented graduates. At KIT, we nurture global aspirations, build cross-cultural skills and prepare students to become leaders who can make a mark anywhere in the world. I now request Dr. Adesh Kumar Pandey, Director Academics, KIET Group of Institutions, to invite the Honorable Vice Chancellor, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, to award the degrees. I request Professor J.P. Pandey, sir, Honorable Vice Chancellor, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, to permit Director Academics, Principal KIT School of Pharmacy, Deans of KIT School of Management and Department of Computer Application to present their candidates for the award of degree. I now request Dr. Binki Srivastav, Dean of KIET School of Management, to present the candidates for the award of degrees of Master of Business Administration. The awardees of MBA degrees are requested to stand at their places. Awardees of MBA degree are requested to stand at their places. Candidates of MBA, those who are present here as well as those who could not turn up but their names appear in the register. They have been examined for the degree of MBA in year 2024 and their academic abilities have been certified and they are found worthy of this honor. I request that they may be awarded the degree of MBA. I, in the capacity of Vice Chancellor of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, and by virtue of the power vested in me for the purpose, award the degree of MBA to you. You are expected to prove yourself worthy of this honor throughout your life. Thank you, sir. I now request Dr. Akash Rajak, Dean of the Department of Computer Application, to present the candidates for the award of the degree of Master of Computer Applications. The awardees of MCA degree are requested to stand at their places. Sir, I present before you 183 candidates of MCA, those who are present here as well as those who could not turn up but their names appear in the register. They have been examined
for the degree of MCA in the year 2024 and their academic abilities have been certified and they are found worthy of this honor, I request that they may be awarded the degree of MCA. I, in the capacity of Vice Chancellor of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, and by virtue of the power vested in me for the purpose, award the degree of MCA to you. You are expected to prove yourself worthy of this honor throughout your life. Thank you, sir. I now request Dr. Radesh Kumar Pandey, Director Academics, to present the candidates for the award of BTech degree in Civil Engineering, Computer Science Engineering, Computer Science and Information Technology, Electronics and Communication Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Information Technology, and Mechanical Engineering, along with MTech. All the awardees of BTech and MTech degree are requested to stand at their places. Sir, I present before you 59 candidates of Civil Engineering, 210 candidates of Computer Science and Engineering, 205 candidates of Computer Science, 198 candidates of Computer Science and Information Technology, 207 candidates of Information Technology, 189 candidates of Electronics and Communication Engineering, 129 candidates of Electrical and Electronics Engineering, and 107 candidates of Mechanical Engineering, along with 9 candidates of MTech, those who are present here as well as those who could not turn up but their name appears in the register. They have been examined for the degree of BTech and MTech in the year 2024 and their academic abilities have been certified and they are found worthy of this honor. I request that they may be awarded the degree of BTech and MTech. I, in the capacity of Vice Chancellor of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, and by virtue of the power vested in me for the purpose, award the degree of Bachelor of Technology and Master of Technology to you. You are expected to prove yourself worthy of this honor throughout your life. Thank you, sir. Candidates for the award of degrees in Master of Pharmacy and Bachelors of Pharmacy. The awardees of M.Pharm and B.Pharm degree are requested to stand at their places. Sir, I present you 38 candidates of Master of Pharmacy and 90 candidates of Bachelor of Pharmacy branch, those who are present here as well as those who could not turn up but their names appear in the register. They have been examined for the degree of Master of Pharmacy and Bachelor of Pharmacy in year 2024 and their academic abilities have been certified and they are found worthy of this honor. I request that they may be awarded the degree of Master of Pharmacy and Bachelor of Pharmacy. I, APJ Abdul Kalam Technical University, and by virtue of the power vested in me for the purpose, award the degree of Master of Pharmacy and Bachelor of Pharmacy to you. You are expected to prove yourself worthy of this honor throughout your life. Thank you, sir. KIET Group of Institutions to request the Honorable Vice Chancellor along with the esteemed dignitaries to confer the degree and present merit awards to the university, rank holders and branch toppers of KIET. I request Honorable Vice Chancellor Dr. APJ Abdul Kalam Technical University along with all the esteemed dignitaries to confer the degree and present merit award to university rank holders and branch toppers. Please, sir, please. Ms. Kajal Tyagi, MTech in CSE, gold medalist at the university, rank holder.
Ms. Kajal Tyagi, MTech in CSE, gold medalist. Ms. Shubhangini Agarwal from the Department of Computer Application. इन्वेस्ट करना है, मेरे को नहीं देना है। कब दे दिया? इसको जरूर देना। पहले भी प्राइस मिला होगा इसका। मैंने सैलरी से दिया अलग बात है, तो टिप नहीं दे। और आज मीटिंग Mr. Sajal Gupta from the Department of Computer Science and Engineering, silver medalist. The silver medalists are being awarded a cash prize of rupees 40,000. सोचा नहीं है, सोचना जरा जरूरी है, इसका किसका कंट्रीब्यूशन है। Ms. Kopal Kapoor from the Department of Information and Technology, silver medalist. Mr. Rahul Yadav from KIT School of Management, silver medalist. 40,000 रुपये क्या लाइन पे रखो। इधर चेक किया है, सब संभाल के रखना। Ms. Neha, MTech in CSE, bronze medalist. The bronze medalists are being awarded with a cash prize of rupees 30,000. रखे रहोगे? अरे वेरी नाइस। Mr. Ayush Kumar Singh from the Department of Civil Engineering. He has secured 4th position at the university level, being awarded with a cash prize of rupees 20,000. Ms. Vaishnavi Avasthi from the Department of Information and Technology, 4th position holder at the university level, being awarded with a cash prize of rupees 20,000. Ms. Tanya Singh from the Department of Computer Science, 5th rank holder at the university level, being awarded a cash prize of rupees 20,000. Ms. Shruti Singh from the Department of Information and Technology, 6th rank holder at the university level, being awarded with a cash prize of rupees 20,000. Ms. Chelsea Singh from the Department of Computer Applications, 6th rank holder at the university level, being awarded a cash prize of rupees 20,000.
Ms. Aditi Batra from the Department of Computer Science, 7th rank holder at the university level, being awarded with a cash prize of rupees 20,000. Mr. Pankaj Gupta from the Department of Electronics and Communication Engineering, 8th rank holder at the university level, being awarded a cash prize of rupees 20,000. Mr. Chitransh Tyagi from the Department of Mechanical Engineering, 8th university rank holder, being awarded a cash prize of rupees 20,000. Ms. Riya Sharma from the Department of B Farm, 8th university rank holder, being awarded a cash prize of rupees 20,000. Ms. Riya Sharma. Mr. Abhinav Gaur from the Department of Mechanical Engineering, 10th university rank holder, being awarded with a cash prize of rupees 20,000. I shall now announce the names of the branch toppers of KIET group of institutions. Can we have on stage Ms. Kavita Katiyar from KIT School of Pharmacy? She is the branch topper. Mr. Vaibhav Bansal from the Department of Computer Science and Information Technology. Ms. Prachi Singhal from KIT School of Management. They are the branch toppers of their respective branches. Congratulations to all the university rank holders, merit holders, and branch toppers of KIET group of institutions. Thank you, dignitaries. I request everyone to welcome Professor J.P. Pandey, Honorable Vice Chancellor, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. Sir, please bless the graduates. ये 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर इस संस्था के गवर्निंग बॉडी और चैरिटेबल कृष्णा चैरिटेबल सोसाइटी के सदस्यगण, श्री अतुल गर्ग जी माननीय सांसद और इस संस्था के चेयरमैन, श्री सरीश अग्रवाल जी, श्री सुनील पी गुप्ता जी, श्री जी.डी. जैन जी, श्री ए.एन. गुप्ता जी, श्री नीरज चौधरी जी, श्री राकेश गोयल जी, संस्था के निदेशक, विभागाध्यक्ष, डीन्स, फैकल्टी मेंबर्स, हमारे प्यारे छात्रों, उनके पेरेंट्स,
सभी का आज के इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आभारी हूँ संस्था के मैनेजमेंट का कि उन्होंने ये अवसर दिया। मैं अभी माननीय सांसद जी से कह रहा था कि आपके इस गवर्निंग बॉडी में केवल 2 लोगों से हम लोग परिचित रहे, गुप्ता जी से और माननीय सांसद जी से और मनोज गोयल जी से, बाकी और किसी से हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। आज ये अवसर हुआ है कि हमने और सभी लोगों से भी हमारा परिचय हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। आज जिन लोगों को हम लोगों ने कैश प्राइज़ दिया, उनके अचीवमेंट का सम्मान किया हम लोगों ने और उनको डिग्री दी, उनको ढेर सारी बधाई। जिन छात्रों को डिग्री मिली है उनको भी बधाई, उनके पेरेंट्स को बधाई। जब हम लोग प्राइज़ दे रहे थे तो आप लोग तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे थे। जिन लोगों को स्टेज पर बुलाया जा रहा था उनका अचीवमेंट है और ग्रेटिट्यूड सभी को देना चाहिए। तो इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आज जिस मुकाम पर आप पहुँचे हैं, आप डिग्री लेके जाने वाले हैं, आप बहुत सारे लोग जॉब में जा चुके हैं क्योंकि ये हम लोग एक फॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं। तो आज जिस के कारण आप यहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें जिन लोगों का योगदान है उसमें आपके माँ बाप का योगदान है, आपके गुरु का योगदान है। इन सभी लोगों के लिए कम से कम ताली बजा दो आप। मेरी आपसे ये अनुरोध भी रहेगा कि जब भी कभी ऐसा अवसर मिले, जो लोग भी अच्छा परफॉर्म करें उनको उनका सम्मान, उनको ग्रेटिट्यूड देना जरूर भूलना नहीं। आज आप ग्रेजुएट हो गए 2024 में और आप 2024 बैच है जो आपका ग्रेजुएटिंग ईयर है और आप लोग समाज में जा चुके हैं, कुछ लोग जाने वाले होंगे। आपके जो मैंने बताया जिनके लिए आपने तालियां बजाई, 3 लोग हैं, माँ बाप और आपके गुरु। अभी जब प्राइज़ दे रहे थे हम तो हमने सभी बच्चों से पूछा ये पैसे करोगे क्या, 50,000, 40,000 और 30,000, 20,000। तो उनमें जो हर बच्चों ने जवाब दिया। तो मैं आपको एक अपने साथ घटी घटना बता रहा हूँ कि जब मैं एक जगह वाइस चांसलर था तो हम लोग उन बच्चों से बात करते थे जिनका अच्छा पैकेज होता था, जिनको अच्छा प्लेसमेंट मिलता था। तो एक बच्चा था जिसका माइक्रोसॉफ्ट में 3rd ईयर में ही प्लेसमेंट हो गया। तो उसको ऐसे ही इनफॉर्मल टॉक में हम लोग, मैं था, डीन एकेडमिक थे, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लोग थे, एक सम्मान की बात है कि उसका 50 लाख रुपया पैकेज था और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में उसका प्लेसमेंट हुआ 3rd ईयर में ही। तो किसी को भी लगेगा 50 लाख रुपए का मतलब 12 चौक 48, करीब 4.5 लाख रुपए महीने की सैलरी हो गई। तो बड़ी बात है। तो आदमी के पास कोई खर्चा तो था नहीं। तो हमने उससे पूछा कि ये इस पैसे को करोगे क्या? तो बोला अभी सोचे नहीं है। ऐसे ही आंसर अभी जो बच्चे आए उन्होंने भी दिया, कुछ लोगों ने, कि बोले बोला सोचे नहीं है। तो फिर ये वो है 4,50,000 रुपये मिलेगा, 50 लाख रुपये तो पूरे साल में मिलेगा, करोगे क्या? कई बार इंसिस्ट करने के बाद उसने को बोला थार खरीदेंगे सबसे पहले, थार गाड़ी। तो फिर बोला कि थार तो आ जाएगी, बाकी पैसा क्या करोगे आप? तो बाकी पैसे में भी वो कहने लगा कि अभी सोचेंगे। तो थोड़ी देर के बाद कहने लगा कि गुड़गांव में एक फ्लैट खरीदेंगे। उसकी प्रायोरिटी देखो आप, पहले थार से फ्लैट पे आया। तो उसको थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने बोला कि ऐसा है कि अपने इसमें पैसे अपने माँ बाप को दोगे क्या? बोला सर हमारे माँ बाप को पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे ऊपर ही पैसे खर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने कहा नहीं, माँ बाप का बड़ा योगदान रहा है, तुम इतने दिन सिवाय। बोले नहीं सर, माँ बाप को पैसे की ज़रूरत नहीं है। ही वॉज कीप ऑन इंसिस्टिंग कि मदर फादर को पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके मदर फादर के पैसा होगा, उसको लग रहा होगा। तो हम लोगों ने कहा नहीं माँ बाप को देना आप। तो बोला आप लोग इमोशनल कर रहे हो, आप हमको, आप कह रहे हो तो सोचेंगे, इमोशनल कर रहे हो, सोचेंगे। फिर उससे मैंने बोला आप विश्वविद्यालय को कुछ पैसा दोगे? तो बोला विश्वविद्यालय का तो कोई पैसा नहीं बनता है। बोला फीस लिया आपने, हमको पढ़ाया। तो हमने कहा चलो नहीं, मैंने कहा कि कुछ इन टीचर्स को दे दोगे जो जिनको पढ़ाया? बोला सर इनका ये तो सैलरी लेते हैं, इनका तो कुछ भी नहीं बनता है। तो
ये जो चीज़ है, मैं आपको अभी बच्चों से पूछ रहा था मैं, आप सोचिए कि माँ बाप ने आपको यहाँ पर पहुँचाया, कितना भी माँ बाप धनी हो, आपने एक अचीवमेंट अचीव किया है, और माँ बाप, आपकी मदर आपको रात में आप सोते होंगे तो वो सोती होंगी, उसके बाद सुबह उठने से, आपके उठने से पहले वो आपको उठाती है, चाय बनाती है, आप पढ़ते हैं, आप स्कूल से जाते हैं, आपके लिए ब्रेकफास्ट देती है, चाय देती है, कितना केयर करते हैं पेरेंट्स आपको। तो सबसे पहला जो अधिकार है वो पेरेंट्स का है। तो इसमें केवल 3 बच्चों ने ये बोला कि हम पेरेंट्स को देंगे। आपके पेरेंट्स को और आपके गुरु को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, बट आज की डेट में जॉब कर रहे हो, आपने पहली सैलरी अपनी मदर को दे दी। तो ये जो हमारा अभी हम इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बहुत सरकार काम कर रही है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम है, 8000 पुरानी सभ्यता हमारे देश की है, 5000 पुराना तो हमारा आपका गीता की सभ्यता, गीता जो हमको मिली हुई है। तो आप सोचिए कि हम अपने बॉन्ड्स पे, और ये दोष हमारा भी है और हमारे जो टीचर्स बैठे हैं उनका भी है, क्योंकि जब वो बच्चा 4 साल का होगा तो हमारे सिस्टम में उसने इंट्रोड्यूस किया होगा, हमारे हिस्से लेके आई उस मदर कि आप हमारे बच्चे को अच्छा बच्चा बनाना, और हमने उसको क्या बनाया, ब्रिलियंट बच्चा है। JEE के थ्रू उसका एडमिशन हुआ था और पहले अटेम्प्ट में उसका 50 लाख रुपए के पैकेज में सिलेक्शन हुआ। तो ब्रिलियंट बच्चा है, कल को सोसाइटी में किसी भी पोजीशन पे रहेगा, डिसीजन मेकिंग रोल में रहेगा। और आप सोचिए वो बच्चा, अगर इसकी मानसिकता हमने उसके 21 साल के एज में, 4 साल के एज में उसके बच्चे ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम को उसकी मदर ने हम लोगों को हैंड ओवर किया था, और हमने उसको 21 साल के बाद क्या बनाया, एक स्वार्थी बच्चा बना के भेजा। उसका स्वार्थ है, सेल्फ है बस, और उसको अपने से लेके कुछ किसी को लेना देना नहीं। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। जो हमारे सामने गुरु लोग बैठे हुए हैं, मैं वाइस चांसलर हूँ, मेरे लिए भी चिंता का विषय। तो ये चीज़ें हमारे गुरु लोगों की बात है। गुरु के केस में देखिए गुरु का कितना इंपॉर्टेंस है। हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा हनुमान जी के लिए लिखी गई है, लेकिन आप देखिए हनुमान जी का नाम तीसरी लाइन में आता है। सबसे पहले क्या आता है, गुरु, श्री गुरु चरण सरोज रज। आप इंपॉर्टेंस देखिए, गुरु को किस कैडर में रखा है। हम पूजा करते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु को ही शुरू करते हैं, गुरु से ही हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। तो हमारा जो गुरु लोग हैं, मैं भी गुरु हूँ, हमारा भी दायित्व है, आप सभी का दायित्व है कि हम छात्रों को ऐसा बनाएं। चूंकि ये उद्धृत मैंने पूछा, हमारे माननीय सांसद महोदय भी थे तो सुन रहे थे कि मैं बच्चों क्या जवाब दिया, बच्चों ने, उन्होंने भी सुना है। 2-3 बच्चों ने बोला कि हम अपने पेरेंट्स को देंगे। अच्छा लगता है, पेरेंट्स को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। आप अच्छे रहोगे, अच्छे छात्र रहोगे, अच्छे उन माँ बाप हमेशा अपने बच्चे को इस तरह से देखते हैं कि आप कितने भी मजबूत हो जाओगे। जब मैं सुल्तानपुर गोरखपुर से चलता था पढ़ने के लिए तो हमारी मदर रोने लगती थी और कहती थी कि धीरे, मोटरसाइकिल से जब जाते थे तो कहते थे धीरे चलना। हम धीरे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बट उनका दायित्व तो है ये बताना कि हम धीरे चलें क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। ये इमोशनल अटैचमेंट होता है और ये केवल माँ बाप और आपके जो 3 लोग हैं वही उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब आप एक नए इन्वायरमेंट में जा रहे हो। जब मैंने बीटेक किया था 38 साल पहले, तो न तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी और न ही चैलेंजेस थे। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है और आपके पास चैलेंज भी है। जितना ज़्यादा चैलेंज है उतनी ही अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है और आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। और आप जिस संस्थान से पास होके जा रहे हो, आज के समाज में या आने वाले समय में जब भारत को विकसित राष्ट्र बनना है 2047 में, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मंच के इस तरफ, मंच के उस तरफ, सभी लोगों की इच्छा है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा 2047 में। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम जो एट्रीब्यूट्स आपको इस संस्थान ने सिखा के भेजा है उसी की आवश्यकता है। अभी जब आपके डायरेक्टर साहब आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो देखिए स्किल डेवलपमेंट पे इन्होंने काम किया, आप लोगों को स्किल सिखाया। लास्ट ईयर में आया था आपका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे।
आपको जो इन्वायरमेंट जो दिखाया है, आपकी एक छोटी सी फिल्म है, वो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी कि मुझे आपको ये बताना ज़रूरी हो गया कि आप उन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करना जो आप यहाँ से सीख के गए हो। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मेरे साथ जो आए डॉक्टर साहब, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो रही है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और ये मुझे लगता है कि ये जो कैरिकुलर एक्टिविटी के अलावा एक्स्ट्रा कैरिकुलर और को कैरिकुलर, ये दोनों आज की डेट में आपकी कैरिकुलर एक्टिविटी का हिस्सा हो गया है। पहले ये 3 बाउंड्रीज थी, कैरिकुलर, को कैरिकुलर और एक्स्ट्रा कैरिकुलर, बट ये तीनों मर्ज होके आज की डेट में हमारे शिक्षा क्षेत्र में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और तीनों एक ही हो गया। तो आपने इस इन्वायरमेंट को एंजॉय किया है और निश्चित रूप से अब आप जब समाज में जाएंगे तो आप काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। आप अच्छा काम करेंगे, आप ये आपका तो नाम होगा ही होगा, बट यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट के लोग, जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, उनको भी एक गर्व का अनुभव होगा कि हमारा छात्र है। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि ये हमारा छात्र है। बहुत सारे IAS अफसर हैं, जब वो ऐसे कहते हैं कि साहब ये हमारे गुरु हैं, तो हमको व्यक्तिगत खुशी होती है, उनको भी खुशी होती है। तो ये आपका दायित्व है कि आप कभी भी इस संस्थान का नाम लेट डाउन नहीं होने देना अपनी किसी भी एक्टिविटी की वजह से। आप अच्छे लीडर बनोगे, लीड करना है आपको सोसाइटी को अपने हर एक क्षेत्रों में। इसके लिए गीता को हमें रेफर करना है। हमारी जो गीता है वो ऐसा ग्रंथ है कि जिसके अंदर हर चीज़ का सलूशन अवेलेबल है। तो आप लीडरशिप में रोल में जाएंगे तो जो गीता में 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक में धृतराष्ट्र ने पहला और आखिरी श्लोक बोला है। धृतराष्ट्र ने पूरी गीता में केवल एक श्लोक बोला, वो पहला वाला। पहले वाले श्लोक में धृतराष्ट्र जी संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्र राजा थे, संजय से पूछते हैं कि हे संजय, ये संस्कृत में है, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ। हे संजय, आप ये बताओ कि पवित्र स्थल कुरुक्षेत्र में हमारे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों में युद्ध होगा? दिस वॉज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय धृतराष्ट्र जी। अब आप सोचो कि एक राजा है, राजा ने एक निर्णय लिया कि युद्ध होगा। पांडव 5 गांव मांग रहे थे, 5 गांव दे देते तो युद्ध नहीं होता, बट धृतराष्ट्र ने ये बोला कि 5 गांव भी लड़के लेना पड़ेगा। दुर्योधन ने लड़के लेना पड़ेगा, तो लड़ाई का आदेश तो दिया था राजा ने। तो राजा इस जो स्टेटमेंट था धृतराष्ट्र जी का, इसके अंदर 3 इन्फ्लुएंस ड्रा करते हैं हम लोग। पहला, ही वॉज डाउटफुल ऑन हिज डिसीजन। एक राजा हो, आपने ऑर्डर दिया है लड़ाई लड़ने का, तो लड़ाई होगी। अगर नहीं लड़ाई होगी इसका मतलब आप राजा नहीं हो, आपके निर्णय नहीं हो सकते। तो कभी भी लाइफ में जब भी कोई डिसीजन लेना तो उसमें डाउटफुल नहीं रहना। डिसीजन गलत भी हो सकता है, बट उसको आप रिकूप कर सकते हो, बना सकते हो। बट अगर डाउटफुल आप रहोगे अपने डिसीजन पर, तो अगला जो डिसीजन लेने वाले हो वो उससे भी ज़्यादा डाउट क्रिएट करेगा। तो इसलिए कोई भी डिसीजन अच्छा भी हो सकता है, और 99.99% जो डिसीजन होते हैं उसके प्रॉज एंड कॉन्स बराबर होते हैं। एग्जीक्यूशन कैसे होता है उस पर उसका निर्णय होता है, लेकिन वो अच्छा रहेगा। तो इसलिए कभी भी अपनी लाइफ में जब भी कोई डिसीजन लेना, बीइंग ए लीडर, बीइंग ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बीइंग ए वर्कर, कभी भी उस पर डाउट नहीं करना, डाउटफुल नहीं रहना चाहिए, जो धृतराष्ट्र ने किया। और धृतराष्ट्र के इसी 3 निर्णयों की वजह से पूरी महाभारत हुई है। दूसरा जो था, ही वॉज फियरफुल। आदमी जब डरा रहता है तभी पैनिक होता है कि अरे देखो लड़ाई हुई कि नहीं, वो आदमी आया कि नहीं, कैसे गया कि नहीं गया। ही वॉज पैनिक, फियरफुल। क्यों फियरफुल थे? क्योंकि क्या हुआ कि जब लड़ाई उड़ाई होने वाली थी तो राजाओं के पास ज्योतिषाचार्य रहते हैं, तो उन्होंने ज्योतिषों को दिखाया था कि हमारे 100 लड़कों की कुंडली दिखाई, तो उन्होंने सबने कहा कि ये 100 लड़के आपके मारे जाने वाले हैं, ये जाने जाए, इनकी जीवन ज़्यादा नहीं है। तो एक फादर के नाते ही वॉज फियरफुल। उनको मालूम था कि हमारे 100 लड़के चले जाएंगे, अगर युद्ध होगा तो कहीं इसी में तो नहीं चले जाएंगे। सब प्रिडिक्टेड था कि ये होगा तो ऐसे होगा, तो उनको ही वॉज डाउटफुल, फियरफुल।
और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ही वॉज पार्शियल। उन्होंने बोला हमारे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों में युद्ध होगा। बीइंग ए लीडर यू शुड नॉट बी पार्शियल। कभी भी आप निर्णय करोगे तो डाउटफुल नहीं रहना, आप फियरफुल नहीं रहना और पार्शियल नहीं रहना। ये तीन चीज़ें आपकी लाइफ में हमेशा आएंगी, हर मोड़ पे आएंगे। जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे तो आपके सामने इमोशनल डिसीजन और एथिकल डिसीजन लेने के दो रास्ते दिखेंगे। उस समय आपने एथिकल डिसीजन लिया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस दूसरा होगा, एक अगर आपने इमोशनल डिसीजन लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे होंगे। टेक्नोलॉजी से आपका सामना होने वाला है, ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। और जो इस संस्थान ने आपको टेक्नोलॉजी पे, इंक्यूबेशन पर, इनोवेशन पर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस में स्किल सिखाया है, वो आपको मदद करेगा आपकी टेक्नोलॉजी से लड़ने में। आप समझ गए होंगे मैं किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में बूम चल रहा है एआई का, कि एआई हर जगह एआई के जो आविष्कारक थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि एआई जब अपने फुल स्विंग में होगा तो वो सबसे पहले जो जॉब इराडिकेट करेगा या जॉब को ख़त्म करेगा वो करेगा ब्लू कॉलर जॉब। जैसे प्लम्बर है, आपका टेक्नीशियन है, रोबोट के थ्रू, मतलब हर चीज़ रोबोटिक्स हो जाएगी। अभी देखिए आपका फ़ैन है, आप जाके मैनुअली स्विच करते हो, अभी क्या है आप मुंह से बोलते हो वो फ़ैन चलने लगता है। तो ब्लू कॉलर जॉब को ख़त्म करेगा। उसके बाद ख़त्म करेगा वाइट कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब मतलब डिसीजन मेकर्स, जैसे हम लोग हैं, हम फाइल पे आती ही चीज़ें हम डिसीजन लेते हैं, हम अपना विजडम उसमें दिखाते हैं। तो अगर एआई रहेगा तो एआई करेगा, डिसीजन लेगा। तो अंत में उसको ख़त्म करना है आपके क्रिएटिव जॉब्स को। क्रिएटिव जॉब जैसे पेंटर है, कंटेंट राइटर है, इनको ख़त्म करना था उसे। फोटोग्राफर है, अच्छी फोटोग्राफी बोलते हैं, आजकल शादियों में देखो कितने अच्छे अच्छे फोटोग्राफर आ जाते हैं। वो कौन कौन से नाम डाल रखे हैं वो हम लोगों को तो अभी हमारी जनरेशन तो उस फोटोग्राफी को देखी नहीं, बट आप लोग देख रहे हैं। तो इनको सबसे बाद में ख़त्म करना था एआई को, बट एआई ने सबसे पहले इसी जॉब को ख़त्म किया, क्रिएटिव। ब्लू कॉलर तब तो अभी पहुँचे नहीं है, पहले इसी को ख़त्म कर दिया, जो सबसे बड़ा शेर था उसी को मारा है। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय, चैलेंज है। और इस ऐसा भी नहीं है कि ये चैलेंज हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, हम बड़ी ब्रेवली एक्सेप्ट करते हैं और ब्रेवली एक्सेप्ट करेंगे और हम इसको ओवरकम करेंगे। और जो आपने यहाँ से शिक्षा ली है ये आपके बहुत काम आने वाली है। आज एआई तीसरे स्टेज में है, आपको मालूम है, थर्ड स्टेज में हम एआई के चले गए और अभी हम पहली स्टेज के लिए भी पूरी तरह तैयार नहीं है। पहली जो एआई आई आपकी, पहला स्टेज था क्यूरेटिव एआई। आप सभी लोग इसको यूज़ करते हो। फेसबुक पे आप अपने कंटेंट डालते हैं, आप अपने लाइक्स डालते हैं। फेसबुक के अंदर क्या है कि आपके कंटेंट से या जो कंटेंट अवेलेबल है फेसबुक में या जो भी सोशल मीडिया में, तो जो एआई है वो क्यूरेट करके, क्यूरेटिव एआई क्यूरेट करके आपको कंटेंट दिखाता है। दूसरा जो स्टेज था क्यूरेटिव एआई, तो हम लोगों ने यूज़ कर लिया, आपको पता भी नहीं लगा, देखिए वो स्टेज बीत गई। दूसरा स्टेज है जनरेटिव एआई का। ट्रेनिंग जो होती है एआई की वो हमने सिखाई एआई को, बट अब एआई खुद ही ट्रेंड हो रहा है। हमने ट्रेनिंग दी एआई को, सबसे पहले हमने ट्रेन किया, अब वो एआई हमारी असिस्टेंस नहीं चाहिए उसे, वो सेल्फ ट्रेनिंग मोड में चला गया, ऑटो पायलट मोड में चला गया। तीसरा जो है वो एजेंटिक एआई। अभी आपने देखा होगा आज तक में एक अंजना ओम कश्यप का, दूसरा अंजना ओम कश्यप थी, ब्लैक एंड व्हाइट एक सीरियल था। किसी दिन भी इफ शी इज एब्सेंट, उसका जो एजेंट है वो न्यूज रीड करेगा और हमको टीवी पे पता ही नहीं लगेगा कि ये वो है कि वो है। सो देयर इज एजेंट्स। ये स्टेज में हम हैं आज की डेट में। और
आप निश्चित रूप से इसको ओवरकम करेंगे। इसके लिए मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि डे टू डे जो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। जब टीवी का आविष्कार हुआ था, हमारे देश में टीवी आने में 48 वर्ष लगे थे। टीवी का आविष्कार जिस जगह हुआ, वहाँ से हमारे देश में टीवी को आने में 48 वर्ष लगे थे। आज की डेट में 48 घंटे नहीं लगते। तो आप अगर उसके साथ जुड़े रहेंगे, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे फार्मेसी में हो, चाहे मैनेजमेंट में हो, चाहे इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांचेज में हो, उसके साथ आप जुड़े रहोगे तो आपका इसका सबसे अच्छा साधन है सोशल। आपके जो सर्च इंजन्स हैं जितने भी, उनमें सब में कंटेंट अवेलेबल है, बट आपको थोड़ा समय निकाल के ये देखना पड़ेगा, न्यूज़पेपर को पढ़ना पड़ेगा कि देश में चल क्या रहा है और हम एज ए इंजीनियर, एज ए मैनेजर, एज ए फार्मेसी एक्सपर्ट हमको क्या करना है। इंटर डिसिप्लिन रिसर्चेस पर बहुत ही फोकस है। फार्मेसी के हम ये सोचें कि हमने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर लिया, अब हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपको कंप्यूटर साइंस भी उतना ही पढ़ना है जो कंप्यूटर साइंस का लड़का है। अभी वो स्पेसिफिक जॉब नहीं रह जाएंगे, जैसे कोडर है, कोडिंग का काम है, ये सब खत्म, ये एआई कर देगा। एक हमारे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर में, उनसे एक बार हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो हमने बताया उनको कि देखिए आपका क्लिनिकल ट्रायल, ये सब, ये जो पैथोलॉजी है, ये सब खत्म होने वाला है। एक्सरे स्कैनर रह नहीं जाएगा, आने वाले 5 साल में देखना आप। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कैसे, वो डॉक्टर थे, उनको मालूम है कि, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने चैट जीपीटी में डाला कि कैन एआई विल रिप्लेस डॉक्टर, तो उधर से जो जवाब आया, नीचे प्रॉम्प्ट दिया इन्होंने यही, उन्होंने बोला नो, AI will not replace the doctor, but the doctor who will not use the AI will be replaced. तो ये आपके लिए है कि अगर आप उस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं रहेंगे, AI तो मैंने आपको बताया अभी 3rd जनरेशन में, अभी पता नहीं कितनी जनरेशन में। और दूसरा, ये जो टेक्नोलॉजी है ये अपने आप सेल्फ लर्निंग पेस में चली गई है, ये और खतरनाक होगी, इसका कोई भी बाउंड्री। अच्छा, दूसरा, इस टेक्नोलॉजी ने एथिकल और अनएथिकल बाउंड्री को भी समाप्त कर दिया है। जैसे कहते हैं हम ये एथिकल काम है, ये अनएथिकल काम, वो खत्म। ये भी आपके लिए एक करना है। दूसरा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, सभी की कल्पना है। आपको मैं पहले बता देता हूँ, अगर हम विकसित राष्ट्र बनेंगे तो हम कहाँ रहना चाहिए। आज की डेट में जो यूएस की जो जीडीपी है वो $29 ट्रिलियन की है। नेक्स्ट है चाइना, 18-19 के बीच में $ट्रिलियन में उनकी जीडीपी है। आपकी बाकी 3 जो, हम 5वें नंबर पर है, बाकी 3 जो लोग हैं वो 4 और $4.5 ट्रिलियन में सिमटे हुए हैं। मतलब अगर आप $4.5 ट्रिलियन रख लो आप, तो 4.5 के बाद 18 ट्रिलियन जो चाइना का है, इतना गैप है। आपको इसे ब्रिज करना है। हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो चाइना से अच्छी है, अमेरिका से अच्छी है, बट ऐसा थोड़ी ना कि अमेरिका ख़त्म हो जाएगा, चाइना ख़त्म हो जाएगा, ये लोग यहीं रहेंगे हमारी ग्रोथ के साथ। तो हमको हमारा पेस कांस्टेंट पेस में आपको रखना है। और हमारी जीडीपी को बढ़ाने के लिए जो आपने इस संस्थान में इनोवेशन किया है, जो आपने एक्स्ट्रा लर्निंग की है, वो काम आएगा। क्यों हमारे देश की जीडीपी क्यों नहीं इतनी अच्छी है? 140 करोड़ लोग हैं। आपके पास एक वो जो सुपर कंप्यूटिंग लैब है, एनवीडिया की लैब है ना, एनवीडिया कंपनी ग्राफिक्स कार्ड बनाती थी। जब हम लोग कंप्यूटर, जो पुराने लोग हैं, जब कंप्यूटर लेने जाते थे तो हम कहते थे कि इस कंप्यूटर में कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लगा है, तो एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड लगा होता था। और हम इसलिए ग्राफिक्स कार्ड खरीदते थे, उस अपने कंप्यूटर में लगवाते थे, डेस्कटॉप में, या लैपटॉप तो बाद में आया, हम डेस्कटॉप की बात करें। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छी पिक्चर दिखे। हमको कोई रिसर्च नहीं करना था, हमको पिक्चर अच्छी दिखे, इसलिए ग्राफिक्स कार्ड हम लगाते थे। वो कंपनी ग्राफिक्स कार्ड को एआई में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज ए इनोवेशन। और अभी जब आप और उसकी एनवीडिया का 80% जो एआई का जो शेयर है वर्ल्ड का, वो एनवीडिया के पास है आज की डेट में। और एनवीडिया की जो कंपनी वर्थ है वो कितनी है मालूम आपको? $2.8 ट्रिलियन। $2.8 ट्रिलियन उनकी है, जिसके पास 2.5 लाख कर्मचारी हैं, और हम 140 करोड़ लोग हैं। हमारा 4.3
के करीब $1 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी है। अभी आप जो डिस्प्ले कर रहे थे, जो $1 ट्रिलियन की जो कंपनी है उसमें अमेजॉन, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ये लोग हैं 1 ट्रिलियन में। 5 या 6 में से केवल एक कंपनी एमार्को की है सऊदी अरबिया की, जो तेल रिफाइनरी का काम करती है। बाकी सब अपने स्टार्टअप से उठ के आगे बढ़े। इनोवेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है आपको, जीडीपी अगर हमारे को विकसित भारत बनाना है 2047 में, तो हमारी जीडीपी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। और आपको बताऊं कि जब भी कोई देश मजबूत होता है तभी उसकी दूसरे लोग बात सुनते हैं। और हम लोग आपके भरोसे ही, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम विकसित भारत बनेंगे, और निश्चित आप उनको निराश नहीं करेंगे, देश के किसी भी नागरिक को निराश नहीं करेंगे, इस संस्था को भी निराश नहीं करेंगे। तो आप अपने जब भी कोई काम करना, और हमको क्यों नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी जीडीपी है, हमारे पास टेक्निकल कंपनियां बहुत हैं, इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, बट वी आर नॉट हैविंग पेटेंट्स। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो रिसर्च पेपर तो पब्लिश करते हैं, पेटेंट कराते हैं, बट उनके पेटेंट्स का कोई कीमत आज की डेट में इसलिए नहीं है क्योंकि कॉमर्शियलाइज नहीं करते। हमने कोई पेटेंट कराया, अगर वो मोनेटाइज नहीं हुआ, कॉमर्शलाइज नहीं हुआ, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। पेपर हमने पब्लिश किया, इम्पैक्ट फैक्टर 7 है, हमारा कैश का प्रमोशन तो हो जाएगा, बट हमने समाज को कुछ नहीं दिया। ये हमारे लिए जरूरी है। तो इसलिए जब भी आप कोई काम ऐसा करना तो पेटेंट कराना। देखो उबर है ना, उबर ने पेटेंट करा रखा है। उबर के पास एक कार नहीं है, एक कंसेप्ट है, उसका पेटेंट है। एनवीडिया ने पेटेंट करा रखा है। हर आदमी एप्पल का फोन यूज करता है, उसका जो iOS है पेटेंटेड है। कहीं भी बनेगा, एप्पल की कंपनी को पैसा जाना है प्रॉफिट का। तो हमारे देश में हमारे पास पेटेंट नहीं है। हमारी कंपनियां प्रॉफिट तो अर्न करती हैं, बट उनकी प्रॉफिट हमारे जीडीपी में ट्रांसफर नहीं होता है। वो तो रीजन दूसरा है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, वो इकोनॉमिस्ट लोगों का काम है कि डिसाइड करना क्या करना है। तो इनोवेशन, आपका जो स्किल है वो बहुत जरूरी है। और भगवान श्री कृष्ण ने बोला भी है, योग की परिभाषा दिया उन्होंने, तो उन्होंने बोला योग कर्मसु योग कौशलम, योग कर्मसु कौशलम। कार्यों में जो कुशलता है वही योग है। भगवान वो रामदेव जी का तो योग ये है कि आप उससे करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, बट अगर आपका कार्य स्वस्थ रहना है तो उसके लिए आपकी जो कुशलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रूम आप टीचर हो, पढ़ाते हो, एक अच्छे तरीके से पढ़ाइए, ज्ञान का सृजन करिए। ये एक टीचर के लिए योग है जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। 5000 वर्ष पहले बोला उन्होंने, इसका मतलब सही ही होगा। योग की परिभाषा हमारे लिए ये भी है। तो आप इस योग के साथ दोनों योग करना, मन को भी स्वस्थ रखना, शरीर को भी स्वस्थ रखना, इन योग को स्वस्थ रखना। एक बार फिर मैं मैनेजमेंट का आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज मुझे बुलाया और मौका दिया। आपको फिर से ढेर सारी बधाई, धन्यवाद। Chairman Ghaziabad Government of India and Chairman Governing Board KIET Group of Institutions. I request everyone to welcome sir with a huge round of applause. It's an honor for us, sir. अभिभावक, मार्गदर्शक, वाइस चांसलर श्री JP पांडे जी, इस विद्यालय का जो नेतृत्व कर रहे हैं श्री आदेश पांडे जी, हम सब जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, इस कॉलेज के प्रारंभ करने वाले लोग, किसी ज़माने में हम सब लोग हाई स्कूल इंटर में एक साथ पढ़ते थे, और अब जीवन की अंतिम यात्रा तक पहुंच गए हैं, पर अभी तक हमारी लड़ाई नहीं हुई है। सतीश चौधरी जी हमारे चेयरमैन, आदिनाथ गुप्ता जी, राकेश गोयल जी, घनश्याम जैन जी, सुनील P गुप्ता जी, जब ये कॉलेज चला था तो ये लोग खाना लेके आते थे अपना यहाँ की मेंटेनेंस कराने के लिए, और मई जून के महीने में यहाँ पंखा नहीं होता था, तब बिजली का कनेक्शन ही नहीं था बिल्डिंग के अंदर। तो इन सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, सपना देखा है, और उससे भी बड़ी बात ये करी है, फिर से दोहरा रहा हूँ, कि आपस में झगड़ा नहीं करा है। और आप लोग भी ऐसी सोच सकते हो कि यहाँ से आज आप लोग डिग्री लेके जा रहे हैं, वाइस चांसलर साहब ने
जो बातें कही हैं वो बहुत माइक्रो सीज्ड हैं। यदि इनको आप डेवलप करोगे तो ये पूरी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी आपके सामने 3-4 बातों में रखी है। सबसे पहले उन्होंने मेरे पे कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है आपसे बात करने का, तो मैं वाइस चांसलर साहब को डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने धन्यवाद की बात कही। जो थैंक्स है वो माता पिता का देने का आपने सोचा क्या? तो हमारे भारत के अंदर ये माना जाता है कि बच्चों को पालना, उनकी देखभाल करना, उनके लिए त्याग तपस्या करना, ये तो माता और पिता का जन्मसिद्ध अधिकार भी है और उनका फर्ज भी है। तो इसमें कर्ज की क्या बात आ गई? अगर ये हम पे पैसा नहीं खर्च करेंगे, हमारा ध्यान नहीं रखेंगे तो बेचारे करेंगे क्या? इस तरह का कोई बिना सोचे समझे का एक माइंड में बहुत लोगों के ख्याल रहता है। वो ये नहीं जानते कि आपकी खुशियों के लिए उन्होंने कभी अपनी खुशी के लिए सोचा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं कि जब आप अमेरिका चले जाओगे, कनाडा चले जाओगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, बेंगलोर चले जाओगे, हैदराबाद चले जाओगे, तो वो कभी मसूरी भी नहीं गए पैसे बचाने के लिए कि भाई कभी मसूरी चले जाएं, कभी नैनीताल चले जाएं, कभी शिमला चले जाएं। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं, उनके दिमाग में ही नहीं आया। और वो पहली बार जब जाते हैं विदेश, जब उनका बेटा बेटी की शादी होने के बाद पहली बार बच्चा घर में आना होता है, उन्हें उस समय याद आती है कि माँ बाप को बुला लेंगे तो हम नौकरी पे जा सकते हैं। 3-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हमारे माता पिता हमारे बच्चों की देखभाल कर लें। हम धन्यवाद देने में हमारे दिमाग में ही नहीं आती। हम उन्हें इतना अपना समझते हैं कि हम उन्हें धन्यवाद देना कि ध्यान में नहीं आती है कि उन्हें धन्यवाद कैसे दें। जबकि जो जिक्र किया हमारी कई हजार साल पुरानी संस्कृति का, जिस पर आजकल चिंतन चल रहा है केंद्र सरकार के द्वारा भी, कि धन्यवाद तो हमारी रग रग में बसा था। अग्नि उसकी पूजा करनी है, अन्न उसकी पूजा करनी है, जल उसकी पूजा करनी है, सूर्य उसकी पूजा करनी है, चंद्रमा उसकी पूजा करनी है, सुबह उठ करके धरती को प्रणाम करना है। ये सब धन्यवाद ही तो था। और धन्यवाद के लिए जो कहते हैं ना, तुमने हमारा करा क्या, तुम परवाह करें क्यों, दम मारो दम, एक गाना आता था किसी ज़माने में, मेरे को याद नहीं है, आप लोग YouTube पे देख लेना, जब मत देखना बिगड़ जाओगे, ठीक है। कि भाई किसी ने हमारा किया क्या, बड़ा आसान है, किसी ने हमारा किया क्या, एक झटके में ख़त्म कर दीजिए बात। अरे धन्यवाद तो उस आदमी का भी दे दो कि जिसने पहली बार पहिया बनाया था, इस पूरी सृष्टि को एक आविष्कार दिया था। धन्यवाद तो उस आदमी का भी देना है कि जिसने पहली बार ये बताया होगा कि अन्न को किस तरह से उगाया जा सकता है। अग्नि का जिसने महत्व बताया हो, गुफाओं में रहने वाली मानवता को जिसने ये सिखाया हो कि अपना भी मकान, अपनी भी झोंपड़ी बना करके रहा जा सकता है। धन्यवाद की तो एक लंबी श्रृंखला है। कभी कल्पना करी जा सकती थी रथ पर चलने वाले लोगों के द्वारा कि साइकिल पर, जिसके अंदर ना बाएं बैलेंस है ना दाएं बैलेंस है, ये सेल्फ सस्टेन स्पीड के साथ गिरेगी नहीं। मेरे को समझ नहीं आता है कैरी बार कि इसको आइडिया कैसे आया कि ये 2 पहिए लगा करके मैं साइकिल पे चलूंगा और वो ना बाएं गिरेगी ना दाएं गिरेगी। तो कैसे उसके दिमाग में बात आई होगी, जिसके भी दिमाग में बात आई होगी। इस सृष्टि पे लगातार जो डेवलपमेंट होकर के जब आप AI 3 तक पहुंच गए हैं, तो एहसानों की, धन्यवाद की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। और धन्यवाद उतारने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जीवन में ये कोशिश करो कि जो कुछ मुझे हजारों साल से मिला हुआ है डेवलप होते होते, मैं भी इस दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट करके मैं भी कुछ देकर जाने का कोशिश करूं, तभी मेरा जीवन सफल होगा।
यहाँ पर मैं देखता हूँ कि आखिरी बात कह के मेरे को 10 मिनट मिले, शायद 5-6 मिनट हो गए होंगे। आखिरी बात कह के मैं छोड़ता हूँ कि जो एक बिना पढ़ा लिखा मैकेनिक है, बिना पढ़ा लिखा कोई कारीगर है, और एक पढ़ा लिखा जो इंजीनियर है या डॉक्टर है, इसके बीच में आखिर अंतर क्या है? वो भी अपना काम बहुत अच्छे से जानता है। कई बार जो काम इंजीनियर नहीं जानता वो एक रोज़मर्रा में काम करने वाला इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल कर देता है, तो उसको हम डॉक्टर क्यों नहीं कहते? उसको हम विद्वान क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसमें एनालिसिस करने की शक्ति नहीं है, वो डिवीज़न नहीं कर सकता विचारों का, वो उसका परीक्षण नहीं कर सकता विचारों को, विचारों के बीच में अंतर नहीं कर सकता है, उस पर विचार नहीं है। उसे काम करना आता है, वो एक्सपर्ट है, पर विचार उसके पास नहीं है। आज सुबह की अखबार में पढ़ा मैंने, 2 फोटो छपी थी अखबार में कि एटा के 2 डॉक्टर गिरफ्तार कर दिए गए। डॉक्टर, और डॉक्टर भी केवल MBBS नहीं थे, वो क्या कहते हैं, डॉक्टरेट करे हुए डॉक्टर थे, PG थी वो। उन पे आरोप ये था कि उन्होंने स्टूडेंट्स को ये कहा, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं एटा के, आज के अखबार में फोटो के साथ है, कि अगर तुम हमें इतने पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें फेल कर देंगे। अब डॉक्टर तो भगवान होता है, क्या कहें ऐसे हिंदुस्तान को, क्या करें हम ऐसे पढ़े लिखे लोगों का। तो ये हालत अगर इस देश की हुई, ये हालत, तो जो क्रेडिट है वो कहाँ जाएगा? मैं कविनगर में रहता हूँ, हमारे यहाँ एक सड़क है बीच में पीछे जाती हुई, उसके ऊपर मोमो वाला, बर्गर वाला, पान वाला और अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने की वहाँ मिलती हैं। वहाँ से हम गुजर नहीं सकते, क्योंकि जिसने जो सामान खरीदना है उसने गाड़ी वहीं खड़ी करके खरीदना है, ट्रैफिक जाम रहता है। अब ये उन भले आदमियों से पूछो कि यार तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम्हारे पास 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक की गाड़ियां हैं, और तुम हिंदुस्तान के जागरूक नागरिक हो, अगर तुम 100-200 मीटर गाड़ी पीछे खड़ी करके पैदल चल करके कुछ खा पी लोगे तो इसमें कुछ नुकसान है। मुल्ला नसरुद्दीन एक बहुत बड़े, जैसे हमारे यहाँ बीरबल हैं, एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं अरबिया कंट्री के, कहीं के, मिडिल ईस्ट के। तो उससे किसी ने पूछा कि मुल्ला तुम इतने तमीज़दार कैसे हो? तो उसने कहा बदतमीज़ों की वजह से, कि जब भी कोई बदतमीज़ मेरे साथ बदतमीज़ी करता है या मैं किसी को बदतमीज़ी करते देखता हूँ तो मैं ये तय कर लेता हूँ कि जो इसने किया वो मुझे नहीं करना। तो मेरा खुद का डेवलपमेंट अपने आप हो गया उन नासमझों की वजह से। तो जो आपको बुरा लग जाए जीवन में, तो बजाय हम ये सोचने के कि एक दिन मैं भी ऐसी करके इसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा, उससे आसान तरकीब ये है कि हम ये तय कर लें कि जो इसने करा वो मैं नहीं करने का हूं। यहाँ पे तो गवर्नमेंट को ये कहना होता है कि थूको मत। तो हम जिस देश में रह रहे हैं, जब आप अच्छे बनते हो तो आपको देख करके भी बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं। मैं इसी अपनी शुभकामनाओं के साथ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप नाम कमाएं, देश विदेश में जाएं तो लोग भारत को याद करें, आपके माता पिता के बारे में पूछें। वो जब ही पूछेंगे कि जब आपका व्यवहार जैसा होगा उसको देख करके ही वो आपका अंदाज़ा लगाएंगे आपके परिवार का। और यही सब मेरा आपको शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। With the young graduates, I request Shri Sunil P. Gupta ji, Honorable Member, Governing Board, KIET Group of Institutions, to administer the pledge to the graduates. All the degree recipients, please stand at your place and repeat after Shri Sunil P. Gupta ji. Pledge as an engineer, scientist, manager, pharmacist.
I do hereby pledge that I shall be involving myself in honest and only honest enterprise, and shall give the utmost of my performance in response to call of duties. I shall strive to preserve the good name of an engineer, scientist, manager, pharmacist, whom I know to be conscientious. But I shall not hesitate to expose anyone who indulges in practices contrary to the national interest. I do pledge that in all my activities, I shall maintain total integrity and fair dealing, respect, tolerance and total devotion to the dignity and standards of our profession. I do also take the pledge that I shall dedicate services irrespective of race, caste, color or community, and I shall endeavor to uphold the secular tradition of India. I do pledge to be a worthy citizen of my country with an international outlook. I pledge that I shall serve India with the best in me, and I shall try to enhance her reputation and pride. To my alma mater, I pledge that I shall uphold its name and dedicate my life to the service of humanity at national and international level. Thank you. Congratulations to everyone, all degree recipients. Please take your seats. Session branch-wise with your faculty members and respective deans. So please stay tuned with us. Further, I request Shri Sarish Agarwal ji, Member Governing Board KIET Group of Institutions, to present a memento to Professor J.P. Pandey ji, Honorable Vice Chancellor, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. Thank you, sir. I now request Dr. Ajay Kumar Srivastav, Dean Computer. Thank you. On behalf of management, faculty, staff, and students of the KIET Group of Institutions, Ghaziabad, I thank Professor J.P. Pandey, Honorable Vice Chancellor, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, for conferring the degrees to our graduates and blessing them. My gratitude to the design management of KIET Group of Institution, Sri Atul Garg ji, Sri Sarish Agarwal ji, Sri Sunil P. Gupta ji, Sri G.D. Jain ji, Sri N. Gupta ji, Sri Neeraj Chaudhary ji, Sri Rakesh Goyal ji. We are extremely grateful to you, sir, for your kind guidance and blessings. A special acknowledgement to KIET dignitaries, Director Academics, Joint Director, Deans, Principals, for their unwavering supports and motivation. I also thank distinguished guests and members of the media for their graceful presence on this occasion. I take this opportunity to thank the organizing committee, my colleagues and students for their hard work and efforts put in for successful completion of this convocation. Once again, I congratulate to graduates of the class of 2024. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. I now request Dr. Adesh Kumar Pandey, Director Academics, KIET Group of Institutions, to invite the Honorable Vice Chancellor, Professor J.P. Pandey ji, to declare the 11th convocation of KIET Group of Institutions closed.
I request Honorable Vice Chancellor, Professor J.P. Pandey, to declare the 11th convocation of KIT Group of Institutions closed. I declare the 11th convocation of KIT Group of Institution closed. Thank you, sir. I request the audience to stand up for national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Everybody is requested to keep standing for the academic procession to leave the convocation hall.